is Earth's only natural satellite. Vikram Sarabhai, a stalwart leader and a scientist, the founding father of Indian space program. It operates as the primary research and development arm of the Department of Space. Chandrayaan 1, India's first mission to moon, was launched successfully on October 22, 2008 from SDSC SHAR Sriharikota. Then, on August 23, 2023, ISRO successfully launched Chandrayaan 3. Dr. APJ Abdul Kalam led the development of SLV 3, successfully launching the Rohini satellite in 1980. Our great scientists are always on their toes to launch new spacecraft. Now I would like to call Prithviraj Wagmare, Anushka Navsupe, Shivani Sherke, Sai Pathare and Varat Pansambar to tell us more about their space performance. Respected Principal Ma'am, Chief Guest on the dais, teachers and all my dear parents. Today, we the students of God Valley Convent School welcomes you on our 8th annual function. Today, we are here to celebrate the culmination of another successful year, filled with growth, achievement and unforgettable memories. Welcome you a wonderful evening. I, Shivani, with my co-host Varat Pansambar, Sai Pathare, Anushka Navsupe and Prithviraj Wagmare will be the host of this program. छू लिया चांद हमने अठन के लिए, ये किया काम हमने वतन के लिए. ख्वाब था जो कभी है हकीकत अभी, पा लिया चांद को हमने मनन के लिए. खार ही खार थे राह में हर तरफ, ढूंढ ली है जमीन को चमन के लिए. देखकर चांद पर देश की इस नाम को, हो रहे खुश सभी जतन के लिए. Today, my heart is filled with pride at the incredible achievement made by India, landing a rover on the moon event. 100% भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया है, क्यों ना भारत की इस मुकाम को चरितार्थ करे. Of course, let the audience know today and tell about the uninspiring feat of India. India although has made progress in different fields but did not lag behind. This made the whole world realize the potential of our countrymen. India make progress since independence is beyond any description. The White Revolution, the Green Revolution, India IT Super Park, Aways Naval and many more. और क्या तुम्हें मालूम है, ये मिशन 2008 में शुरू हुआ था, जिसका नाम लूनार प्रो मिशन था. And since then, India launched another mission in 2018 and named the Chandrayaan 2. देखा, मैं भी तुमसे कम नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ. हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है. मैं तो तुम्हें एवी समझती थी, पर तुम तो छुपे रुस्तम निकले. Yeah, I am different. I also aware that Chandrayaan 3 was launched on 14 July and reached on 23rd August. उन्मुक्त हूँ, स्वच्छंद हूँ, अपने गगन का विहंग हूँ, अपने धारा को छोड़कर मैं नापता अनंत हूँ, वर्णित रहा वृतांत में अब्रज रहा प्रतांत हूँ. ओहो, तुम तो बहुत प्यारी कवित्री निकली. अंतरिक्ष में गूंज उठे हम, चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा, नई एक पहचान लिए. मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम, सच्चा एक अभिमान लिए. Yo, so student, we shall start the program and witness the pride of our country with the upcoming Chandrayaan 3. So please put your hands down for the amazing and scintillating Chandrayaan 3. जिसके संस्थापक थे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई. हमारे भारत देश को आजाद हुए 22 साल हो गए, लेकिन अभी भी भारत के लोगों की सोच आजाद नहीं हुई. आज भी भारत विज्ञान और आधुनिकता के क्षेत्र में बहुत पीछे है. मुझे दुख है कि आज भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत अन्य देशों पर निर्भर है. मेरा सपना है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना की जाए, जिसका उद्देश्य होगा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास. और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए. हाँ, हम आपके साथ हैं. इसरो से प्राप्त हुआ सारा अंतरिक्ष का ज्ञान और 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बना इसरो की शान. 5 दिनों बाद आर्यभट्ट ने छोड़ा साथ, परंतु भारत की अभी भी नहीं टूटी थी आस. आशा
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, भारत के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। कलाम, मैं जानता हूँ आर्यभट्ट मिशन सफल नहीं हुआ, लेकिन असफलता मुझे रोक नहीं सकती। सर, मुझे पता है आप कभी निराश नहीं हो सकते और आपकी यही बात मुझे बहुत प्रेरित करती। तुमने सही कहा, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ और इसीलिए मैं अब तुम्हारा साथ चाहता हूँ अपने अगले मिशन के लिए। सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ भारत में सफलता का परचम लहराने के लिए। 1971 में विक्रम साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों में अपने सपने की बागडोर थमा के पंचतत्व में विलीन हो गए और इस तरह एपीजे अब्दुल कलाम ने 1980 में इसरो से भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी का सफल प्रक्षेपण कर भारत को दिया सफलता का पहला इनाम। सफलता की मिलने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम मिले इसरो के वैज्ञानिक श्री जी माधवन नायर से, जब वे चंद्रयान 1 मिशन पे काम कर रहे थे। आप मुझे ये समझाइए कि इस स्पेसक्राफ्ट का उद्देश्य क्या होगा चांद पे जाकर? सर, इस स्पेसक्राफ्ट में हमने कैमरा लगा दिया है जो चांद की तस्वीरें खींचेगा। इतना पर्याप्त नहीं होगा। स्पेसक्राफ्ट को एक यंत्र से जोड़ें जो चांद की सतह पर जाए और कुछ बड़ा हासिल करे। ओके सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। इसरो ने तब कलाम की सलाह मानी और एक उपकरण को ले जाने के लिए डिजाइन में जरूरी बदलाव किए। इस तरह अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए इसरो ने बढ़ाया चांद की तरफ अपना पहला कदम। 22 अक्टूबर 2008 आया चंद्रयान 1। चंद्रमा का साउथ पोल पहले चंद्रयान का ठिकाना था। कैसे बनी ये सुंदर धरती, इसका पता लगाना था। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर। है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर
आसमान में तिरंगा लहराने का सफल होने वाला था अभियान, लेकिन 2009 को अनंत आकाश में खो गया हमारा पहला चंद्रयान। माधवन, आप निराश ना हो। चंद्रयान प्रथम मिशन भले ही पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर इसने इसरो को लूनर स्पेस में जाने वाला दुनिया की 5वीं नेशनल स्पेस एजेंसी बनाया है और इसने चांद पर पानी होने की पुष्टि की है। आप सब अपनी मेहनत को जारी रखिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम लोग इस मिशन में और सुधार करेंगे। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या पता कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या पता कुछ होता है, लाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, लाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, हिम्मत मरना सब खुदा भी होता है, जा ज़माने को दिखा दे खुद बता क्या होता है, दुनिया का यूं ही थोड़े बना अरमान है, भारत उम्मीद का दूसरा नाम है। और फिर से 22 जुलाई 2019 को उड़ चला हमारा दूसरा चंद्रयान। दिखने लगा था चंद्रमा, लिखने वाले थे हम इतिहास, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर टूट गया संपर्क विक्रम लैंडर से चंद्रयान 2 का। और फिर से अधूरा रह गया चांद पर जाने का भारत का सफर। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, परिणाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे और पूरे देश को अपने वैज्ञानिक, इंजीनियरों, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपसे रात में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। देश भी आपके साथ है। साथियों, हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। कुछ नए आविष्कार, नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करते हैं और इसी से हमारी आगे की सफलता तय होती है। लेकिन इतनी विफलताओं के बाद भी नहीं टूटा इसरो का विश्वास। ठान लिया था उसने, भारत को पहुंचाना है चंद्रमा के पास। और फिर आए एस सोमनाथ। साथियों, हमें चंद्रयान 1 और 2 की कमियों को देखना है और उनमें सुधार करना है। हमें चंद्रयान 3 मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट में और फ्यूल डालना पड़ेगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट और देर तक ऑर्बिट में घूम सके। और हमें इसके चारों तरफ सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, जिससे ज्यादा ऊर्जा मिल सके। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 14 जुलाई 2023, जिस दिन पूरे विश्व ने सुनी भारत की पुकार, जब चंद्रयान 3 पहुंचा गगन के पार। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
शाबाशिया 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 Here we have a majestic liftoff of LM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. और फिर पूरा हुआ इसरो का सपना 23 अगस्त 2023 जब चंद्रयान 3 मून पर हुआ तय। हम सबके लिए जो जाग रहे बस साथ हमारा मांग रहे विज्ञान से भारत सींच रहे इतिहास रहे है सलाम तुझे इसरो है सलाम तुझे इसरो इसरो ने हमें सबका नाम दिए जहांगीर बाबा के सपने पूरे किए मंगल पे तिरंगा फहरा दिए है सलाम तुझे इसरो है सलाम तुझे इसरो ऐसे महापुरुषों को करते हम चंद्रयान और महायान इस धर्म के योगदान को एस्ट्रोसैट अब 104 जय जय विज्ञान हो युवा राम किरण कुमार के योगदान को हम साथ साथ हाथों के हाथ देंगे निगाहें रात हम नौजवान मिलके सबके विश्व गुरु को ज्ञान दिया सलाम तुझे इसरो जय 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 बढ़ गई भारत देश की शान अब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा भारत का नाम भारत को अभी और आगे जाना है चांद पार कर अब सूरज अगला ठिकाना है इसरो सलाम हेलो, क्या बात आहे, भारत माता की. खूप छान, माइंड ब्लोईंग अँड बियॉन्ड द वर्ड्स. तुम्ही जी संपूर्ण स्टोरी याच्यामध्ये वाव, हॅट्स ऑफ टू युअर एफर्ट्स फॉर नूरी मॅम अँड ऑल द किड्स. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईसली इट वॉज एक्झिक्युटेड. खूप छान, खूप मेहनत घेतली आहे मुलांनी यासाठी. थँक्यू सो मच. थँक्यू, थँक्यू डिअर. ही 6वी आणि 7वीची मुलं आहेत. गणेश वंदनेपासून या मुलांनी अनेक परफॉर्मन्सेसमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे धावत जाऊन, पळत जाऊन, पुन्हा नवीन ड्रेपरी, पुन्हा नवीन सगळा गेटअप, पण थकत नाही आहेत मुलं आज. म्हणजे इतका त्यांना पण आनंद आहे आणि हे सगळं छान होतं आहे याचं एक समाधान सगळ्या शिक्षकांनासुद्धा आहे. थँक्यू सो मच. मी सांगू इच्छिते यानंतर शेवटचे फक्त 3 परफॉर्मन्सेस आता आपल्यासमोर राहिलेले आहेत आणि त्यानंतर या संपूर्ण कार्यक्रमामधून आपल्याला सगळ्यात जास्त कोणता ॲक्ट किंवा कोणता डान्स आवडला त्यावरून आपण बेस्ट परफॉर्मन्स किंवा बेस्ट डान्स आपण सिलेक्ट करणार आहोत. इट विल बी द ऑडियन्स पोल.
पालक जे म्हणतील त्याला आपण बक्षीस देणार आहोत. सो कुठेही जाऊ नका, कारण तुमचं मत फार महत्त्वाचं आहे. बेस्ट सॉन्ग आपल्याला सिलेक्ट करायचे. सगळ्यात छान तुम्हाला काय वाटलं, काय आवडलं ते आम्हाला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचं आहे. सो चलो, लेट्स मूव ऑन. अँड नाव अगेन इट्स टाइम. Janavi, please come up and tell us what we are going to see next.